کا جو ٹاپک ہے ہماری دعا اور خدا کا جواب. آج کیا موضوع ہے؟ ہماری دعا اور خدا کا جواب. دعاؤں کا جواب تو لازمی آتا ہے، لیکن ان دعاؤں کا جواب آتا ہے جو کلام کے مطابق مانگی جاتی ہیں. جو کلام سے ہٹ کر دعائیں کی جاتی اس کا جواب نہیں آتا. اس کے لیے خدا کا آلویز نو انکار ہوتا ہے. تو اس لیے نوٹ فرما لیں، ہماری دعا اور خدا کا جواب. 3 پوائنٹ ہوں گے اس موضوع پر، اور اس میں آج یہ بھی بات ہم سیکھیں گے کہ دعا کا جو پاسورڈ ہے وہ سینٹس نہیں ہے، ایون پاسٹرز بھی نہیں ہیں. کئی سمجھتے ہیں کہ فلاں پادری کو چلے جاؤ تو مسئلہ حل ہو جانا. پھر میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک آپ کلام کے مطابق نہیں آئیں گے، کلام کے معیار پر نہیں اتریں گے، آپ کی دعا کا جو پاسورڈ ہے وہ پاسورڈ نہیں ہے. پاسورڈ سمجھتے ہیں نا، چیزوں کو کھولنے کے لیے. آپ کے لیے آسمان نہیں کھولے گا جب تک آپ درست دعا اور کلام کے مطابق دعا نہیں کریں گے. آج کا جو حوالہ ہے، آیت مقدسہ ہے، جو تلاوت ہے، وہ حبقوق نبی کا صحیفہ ہے پرانے عہد نامہ میں. آئے دیکھیں حبقوق نبی کی معرفت خدا کا کلام، دوسرے باب کی پہلی آیت مقدسہ. جی. خدا کے کلام مقدس میں یوں رقم ہے، میں اپنی دیدگاہ پر کھڑا رہوں گا اور برج پر چڑھ کر انتظار کروں گا کہ وہ مجھ سے کیا کہتا ہے، کہ وہ یعنی خدا مجھ سے کیا کہتا ہے، اور اپنی فریاد کی بابت، اور اپنی یعنی میری جو فریاد درخواست ہے اس کی بابت کیا جواب دوں. مقدس کلام کے پڑھے، سنے، سمجھے اور قبول کیے جانے پر خداوند کی الہی برکت. سب کہیں آمین. حبقوق اپنی دعاؤں کے لیے خدا کی طرف دیکھتا ہے، اپنی نظریں خدا کی طرف لگاتا ہے. اس وقت بنی یہودہ برے طریقے سے ذلت اور رسوائی کا سامنا کر رہی تھی، اور بابل اس وقت کی سپر پاور برے طریقے سے ان کا استحصال کر رہے تھے. داخلی طور پر اور خارجی طور پر پوری دنیا میں بربریت تھی، خوف، دہشت. لیکن حبقوق خدا کے حضور جھکا رہا، جڑا رہا. اور میں آپ کو بتاتا چلوں، حبقوق عبرانی لفظ حباقوق سے نکلا ہے، حابق سے مشتق ہے، اور یہ ایک پودا ہے. اور اس پودے کی وضع قطع اور اس کو اگر آپ دیکھیں غور سے تو وہ ایسا پودا ہے، ایسے لگتا ہے 2 آدمی آپس میں گلے ملے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، بغل گیر ہو رہے ہیں، جنہوں کہتے ہیں نا وہ جفی پائی ہوئی ہے. حبقوق اپنے نام جیسا تھا. حالات خراب تھے، بنی یہودہ دکھ اٹھا رہے تھے، غلامی تھی، اسیری تھی، اذیت تھی، ظلم تھا، بربریت تھی، جبر تھا، زیادتی تھی، نفرت تھی، تعصب تھا، محرومیاں تھی. لیکن اس نے اپنی نظریں دنیا اور حالات پر نہیں لگائیں، اپنی نظریں خدا کی طرف لگائیں. لوگ شاید گمراہ ہو گئے ہوں گے، لیکن حبقوق خدا کے ساتھ جڑا رہا. اس کے نام کا مطلب بھی یہی ہے، لب کا رہنے والا، جڑا رہنے والا. کلیسیا کو دعا کی اشد ضرورت ہے. بولے میرے ساتھ، کلیسیا کو دعاؤں کی ضرورت ہے. کلیسیائی طور پر، شخصی طور پر، خاندانی طور پر، معاشرتی طور پر، ملکی طور پر ہمیں دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے. لیکن خدا ہماری دعا کا جواب کب دیتا ہے، اس پر آج ہم غور کریں گے. جیسے میں نے عرض کی
کہ دعا کا پاسورڈ صرف یسوع مسیح ہے. ہاللیلویا. اگر آپ لیپ ٹاپ یا موبائل کو کھولنا چاہیں تو آپ کے پاس ایک پاسورڈ ہوتا ہے. آج کل تو مختلف قسم کے ہیں. فیس آئی ڈی بھی لوگوں نے لگائی ہوئی ہے کہ وہ فیس کے ساتھ اس سیکیورٹی کو لگا دیتے ہیں، اور اگر اس فیس کے علاوہ کوئی اس کو کھولنے کی کوشش کرے گا تو وہ نہیں کھولے گا. ایسے ہی ہے نا. کئی لوگوں نے پیٹرن لگایا ہوا ہے، اور کئی لوگوں نے بڑا مشکل سا پاسورڈ لگایا ہوتا ہے. اور اگر آپ رانگ پاسورڈ انٹر کریں گے، موبائل نہیں کھلے گا، لیپ ٹاپ نہیں کھلے گا، سافٹ ویئر نہیں کھلے گا، آپ کی رسائی، آپ کی پہنچ، آپ کی اپروچ نہیں ہوگی. آج شام یہ پیغام ہے، آسمان کو کھولنے کے لیے ایک ہی پاسورڈ ہے، ایک ہی نام ہے، اور وہ یسوع نام ہے. اس کے علاوہ نہیں کھلے گا آسمان. اس بات کو انڈرسٹینڈ کر لیں. آپ لوگ رانگ پاسورڈ لگا رہے ہیں. ہم تمام بائبل مقدس کی عظیم ہستیوں کا دل سے اور پورا احترام کرتے ہیں جو کچھ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے. لیکن آسمان نہ تو پطرس رسول کے نام سے کھلتا ہے، نہ پولس رسول کے نام سے، نہ ہمارے خداوند کی ماں مقدسہ مریم کے نام سے کھلتا ہے. آسمان صرف یسوع کے نام سے کھلتا ہے. ہاللیلویا. اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ دعاؤں کا جواب اس وقت آئے گا جب دعائیں درست کی جائیں گی. میں آپ کا دل نہیں رکھنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ خدا کے کلام کی حقیقت اور سچائی سے آپ واقف ہوں. دنیا کا کوئی پاسورڈ بھی پاسورڈ نہیں ہے. یہ بھی ایک کچھ عرصہ سے لوگوں نے پاسٹروں کو بنا لیا کہ اے پادری دی دعا صحیح ہے جڑی لگ جاندی ہے، وہ دے ہاتھ چومدے نے جا کے کہ جی اے پاسٹر دی دعا جڑی ہے نا اے ٹھیک بجدی ہے جا کے. دعا کا پاسورڈ پاسٹر بھی نہیں ہے، دعا کا پاسورڈ صرف یسوع ہی ہے. وہ دے کہن تو علاوہ نہیں ہونا ہے کام. میں آپ کا دل نہیں رکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کو خوش نہیں کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ کلام کی سچائی کو جان لیں کہ دعا کا پاسورڈ صرف یسوع ہے. مجھے افسوس ہوتا ہے خادموں نے لوگوں کو اس طرف لگا دیا ہے. ٹیچ کرنا چاہیے تھا. کلیسیا کو دعا کرنے والی کلیسیا بنانے کی ضرورت ہے. کلیسیا خود تو دعا نہیں کرتی، آپ خود تو دعا نہیں کرتے، صرف دعا کروانے پہ لگے ہوئے ہیں آپ. ٹھیک ہے، اس کا بھی ایک حصہ ہے، پورشن ہے اس کا ایک. اس کی باقاعدہ بائبل میں ٹیچنگ موجود ہے، ہم بلیو کرتے ہیں. لیکن لوگ بھول ہی گئے ہیں کہ انہوں نے خود بھی دعا کرنی ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں، میں اس طرف آپ کو لے کر آنا چاہتا ہوں کہ آپ کی اپنی دعائیہ زندگی کیسی ہے. آپ جتنی مرضی دعائیں کرواتے جائیں، جب تک آپ خود خدا کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوں گے، جڑیں گے نہیں، آپ کی دعائیں نہیں سنی جائیں گی. دعا کے تعلق سے جب ٹیچنگ کی بات ہوتی ہے، دعا پر میں نے بہت سارے میسیجز دیے ہیں، روزے پر بہت سارے میں نے میسیجز دیے ہیں، شفاعت پر میں نے بہت زیادہ پیغامات دیے ہیں. 3 باتیں نوٹ کر لیں دعا کے تعلق سے، دعاؤں کے جواب کے تعلق سے. نمبر 1، دعا کا جواب ہاں میں بھی آ سکتا ہے. کہ اگر آپ نے کوئی دعا کی ہے، درخواست کی ہے، تو اس کا جواب یس. اس کا جواب یس بھی ہو سکتا ہے کہ اوکے، خدا کہے گا ٹھیک ہے میرے بیٹے، تو نے دعا کی ہے، تیری دعا قبول ہو گئی ہے، یہ لے میرا بیٹا، تیری برکت میں جاری کر رہا ہوں. پہلا نقطہ، دعا کا جواب ہاں بھی ہو سکتا ہے. اور دوسرا نقطہ، دعا کا جواب انتظار بھی ہو سکتا ہے. ویٹ دنیا دا سب تو اوکھا کام.
वेट जड़ा हुंदा ही नहीं, ये मुश्किल तरीन काम है, यस, लेकिन हमारी जो तालीमात हैं बाइबल ने हमें सिखाई हैं, पेशेंस, सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त, टॉलरेंस, उनमें से एक फल भी है। हालेलुया। रुल कुछ का एक ही फल मोहब्बत है, लेकिन उसकी तासीरें, उन तासीरों में ये भी तासीर शामिल है। हमारा दुआ के लिए आसमान के साथ कनेक्ट होना जरूरी है। यूहन्ना का पहला खत 3 बाब 20 आयत से हम पढ़ेंगे 23वीं आयत मुकद्दसा तक। जी। क्योंकि खुदा हमारे दिल से बड़ा है। हाँ जी, क्योंकि खुदा हमारे दिल से बड़ा है और सब कुछ जानता है। सब कुछ जानता है। ए अजीजो, जब हमारा दिल हमें इल्जाम नहीं देता, तो हमें खुदा के सामने दलेरी हो जाती है। और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उसकी तरफ से मिलता है। क्योंकि हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं और जो कुछ वो पसंद करता है उसे बजा लाते हैं। और उसका हुक्म ये है कि हम उसके बेटे यीशु मसीह के नाम पर, किसके नाम पर? यीशु मसीह के नाम पर। पासवर्ड क्या है जी आपके पास दुआ का? यीशु मसीह के नाम पर ईमान लाएं और जैसा उसने हमें हुक्म दिया है उसके माफिक आपस में मोहब्बत रखें। दुआ का जवाब उस वक्त आएगा जब आप कनेक्ट होंगे आसमान के साथ, आपका दिल दुरुस्त होगा, आपकी तार जुड़ी होगी हेवन के साथ, तो फिर दुआ का जवाब हाँ में आएगा। शमूएल की पहली किताब 3 बाब की 19वीं आयत अगर आप पढ़ें, आइए देखिए जरा। और शमूएल बड़ा होता गया और खुदावन उसके साथ था और उसने उसकी बातों में से, हाँ जी, उसकी बातों में से किसी को मिट्टी में ना मिलने दिया और सब बनी इस्राएल ने दान से बहरे सबा तक जान लिया कि शमूएल खुदावंद का नबी मुकर्रर हुआ और खुदावंद सैला में फिर जाहिर हुआ क्योंकि खुदावंद ने अपने आप को सैला में शमूएल पर अपने कलाम के जरिया से जाहिर किया। कब दुआएं सुने जाती हैं? जब आप खुदा के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। शमूएल खुदा की मर्जी पर चल रहा था, उसकी मर्जी में रहता था। आज ही मैंने एक पॉइंट नोट किया है, खुदावंद की हुजूरी में भागे, खुदावंद की हुजूरी से ना भागे। सुने गौर से, नुक्ता पॉइंट बड़ा खास है। खुदावंद की हुजूरी में दौड़े, खुदावंद की हुजूरी से ना दौड़े। आपको पता लोगों की दुआएं क्यों नहीं सुनी जा रही? दुआओं का जवाब क्यों नहीं आ रहा? आसमान क्यों बंद है? आप कहते हैं जो भी मंगे सानू तो कभी खुदा ने दिता नहीं, हमारी तो कोई नहीं सुनी जाती। हम तो दुआ भी करते हैं, हम तो चर्च भी जाते हैं, हम तो हदिये और दायकियां भी देते हैं, हम तो वही खड़े हैं। दुनिया कहां चली गई? दुनिया ने तरक्की कर ली। फलां शख्स को देखो, फलां के कपड़े देखो, फलां की मोटरसाइकिल देखो, फलां का घर देखो, फलां की गाड़ी देखो। हम इस तरह की गुफ्तगू करते हैं। फिर नोट कर लें ये फिक्रा जो मैं आपकी खिदमत में कहने लगा हूं दोबारा। खुदा की हजूरी में दौड़ना सीखें, खुदा की हजूरी से दूर जाना या दौड़ना ना सीखें। दर हकीकत लोग खुदा की हजूरी से दौड़ गए हैं, खुदा की हजूरी में नहीं दौड़ रहे।
आप उस वक्त हार जाते हैं। आगे चलकर एक और हवाला इसके ताल्लुक से हम पढ़ेंगे कि खुदा की हजूरी में दौड़ना सीखें, खुदा की हजूरी से दौड़ना ना सीखें। कई लोग आपको खुदा की हजूरी से दौड़ा रहे हैं, निकल जो है। तो कलीसिया तैयारी के बगैर रिजल्ट चाहती है, ये वही है ना कि दुआ शुआ ना करिए आपस ही, बस फिर जो कहने हो ही जावे। सैमुअल के बारे में लिखा कि खुदा ने उसकी किसी बात को मिट्टी में, वाह कैसी गल है, यानी खुदा कहता सी जो तू कहता तो हो गया। ये भी तो एक म्यार है ना, बजाय कि आप दुआएं करते जा रहे हैं और दुआ का जवाब आ ही नहीं रहा, तो ये कैसा रूहानी म्यार है। और फिर एक वो म्यार है कि खुदा ने उसकी किसी बात को मिट्टी में नहीं मिलने दिया, जो कह दिया वो पूरा हो गया, जो मांगा वो मिल गया, जहां वो खड़ा हुआ खुदा भी खड़ा हो गया, जहां खुदा के बंदा ने जो कुछ कहा खुदा ने वही कर दिया। ये भी एक रूहानी म्यार है। तो ये रूहानी म्यार उस वक्त बनेगा जब खुदा की हजूरी में भागना सीख लेंगे। खुदा की हजूरी से दौड़ना नहीं है, खुदा की हजूरी में दौड़ना है। एक नौजवान के बारे में मैं सुन रहा था कि उसे नक्शा दिया गया, अब तो जीपीएस है, तो उसे नक्शा दिया गया किसी जगह का, और वो उल्टा नक्शा फाड़ के थे अपनी मंजिल की तरफ जा रहा था, और रॉन्ग जगह जाकर पहुंचता जी मैं ठीक जगह पे आ गया। उन्होंने कहा नहीं जी ये वो जगह नहीं है। वो कहता अच्छा। देखने वाले ने देखा, उसने कहा कि ओ आपने तो उल्टा नक्शा पकड़ा हुआ है, ये ऐसे है। उसने कहा हाँ। आज लोग इसलिए रॉन्ग डेस्टिनेशन पर खड़े हैं, उन्होंने कलाम को दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। कलाम की दुरुस्त तशरीहात नहीं हुई। डिनोमिनेशंस ने अपने अपने तरीके से लोगों को सिखाने की कोशिश की, इसलिए लोग भटक गए, लोग गुमराह हो गए, लोग राह को भूल गए। देखिए जरा यूहन्ना का पहला खत 5वां बाब 14वीं और 15वीं आयत जी। और हमें जो उसके सामने दलेरी है, हमें जो उसके सामने दलेरी है उसका सबब ये है, उसका सबब क्या है कि अगर उसकी मर्जी के मौके, हाँ अगर उसकी मर्जी के मौके, मर्जी उसकी क्या है, उसका कलाम, मर्जी उसका कलाम। यानी जितना ज्यादा आप कलाम को पढ़ेंगे, सुनेंगे, सीखेंगे, उतनी ज्यादा आप खुदा की मर्जी को जानेंगे, और जितनी ज्यादा खुदा की मर्जी का आपको इल्म होगा, पता होगा, उसी के मुताबिक फिर आपकी दुआएं भी होंगी जी। अगर हम और हमें उसके सामने दलेरी है, हमें उसके सामने दलेरी है, उसका सबब ये है, उसका सबब है क्या कि अगर उसकी मर्जी के मुताबिक कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है, और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं जी वो हमारी सुनता है जी, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने से मांगा है वो पाया है। वाह, जो कुछ हमने मांगा है वो पाया है, वो पाया है। प्रेज गॉड। कलाम को पढ़ने वाला ही खुदा की मर्जी जानता है। बोले मेरे साथ, कलाम को पढ़ने वाला ही खुदा की मर्जी को जानता है। मैं एक बयान सुन रहा था और गौर कर रहा था कि खुदा कम क्यों बोलता है। कई लोग तो अपने ही नजरियात को खुदा की मर्जी समझ लेते हैं जी, खुदा ने अभी मेरे नाल गल की, मेरे नाल भी की, मेरे नाल भी की। वो अपने ख्यालों को ही समझते कि शायद खुदा ने मेरे साथ बात की है। लेकिन सुने गौर से, खुदा कम बोलता है, क्योंकि जब वो बोलता है तो फिर उसको पूरा भी करता है।
इसलिए खुदा उस वक्त बोलता है जब उसकी मर्जी से हम कुछ मांगते हैं, वरना खुदा खामोश रहता है, खुदा चुप रहता है। खुदा उस वक्त बोलता और जवाब देता है जब हम उसकी मर्जी के मुआफिक दुआ करते हैं। कलाम को अपने ऊपर असर अंदाज होने दें, ना कि आप कलाम पर असर अंदाज हों, क्योंकि खुदा ने अपने सब नामों से ज्यादा अपने कलाम को अजमत दी है। हालेलुया। खुदा ने अपने सब नामों से ज्यादा अपने कलाम को अजमत दी है। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट था यस, और यस कब होगी? जब उसकी मर्जी से मांगेंगे। ओके। दूसरा नुक्ता है इंतजार, वेट। जब काना गलील की शादी में हमारे खुदावन और हमारे खुदाम की मां मौजूद थे, आपको पता है इस मौजे को बहुत ज्यादा प्रीच किया गया दुनिया में, लेकिन उसमें जो पैगाम है आज हमारे लिए वो ये है कि जब मुकद्दसा मरियम हमारे खुदावन की मां ने खुदावन यीशु को कहा कि इनके पास मैं खत्म हो गई है, तो आपको पता है कि खुदावन यीशु का आंसर क्या था? वेट। क्या? अभी मेरा वक्त नहीं है, वेट। दूसरा पॉइंट क्या है आज के मैसेज में? इंतजार, इंतजार, वेट। खुदावंद यीशु ने कहा कि अभी मेरा वक्त नहीं है। हम समझ रहे होते हैं लेट है, मगर खुदा के नजदीक कोई चीज लेट नहीं होती। इस पर मैं पहले भी सिखा चुका हूं। कई साढ़े पंजाबी कहणगे खुदा दे घर च देर है हनेर नहीं। क्या कहते हैं? उन्होंने दसियो कि ना उहदे घर च देर है ते ना उहदे घर च हनेर है। हनेर ते है ही नहीं। हाँ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹਨੇਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਤੇ ਅੰਮਾ ਹਵਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਖਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਗੀਅਤਨ ਚੋਂ ਕੱਢਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਫਰੂਟ ਚਾਟ ਖਾਣ ਦਏ ਨੇ ਠਗੀਆਂ ਲਾ ਕੇ, ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਜਾਣਗੇ फ्रूट चाट वाले। हम समझ रहे होते हैं लेट है, लेकिन हमारा लेट, हमारी लेट दर हकीकत खुदा अपने कैलेंडर पर काम कर रहा होता है। मुकद्दसा मरियम ने कहा, क्या तू नहीं जानता कि उनके पास मैं खत्म हो गई है? जवाब क्या आया? वेट। कितने पॉइंट हैं जी आज हमारे सामने? नंबर 1 यस, दुआ का जवाब यस। जे ते कलाम के मुताबिक की थी तो जवाब क्या है? यस। काम हो जाएगा, दुआ सुनी जाएगी, जवाब आएगा, मदद आएगी। मेरी मदद ली रब आप ही आया जिसने धरती ते आकाश बनाया। हालेलुया। लेकिन अगर वो दुआ कलाम के मुताबिक ना हुई तो फिर यस की बजाय नो होगा। अय्यूब क्या कहते हैं? 21वां बाब निकालें जी जरा। अय्यूब 21वें बाब की 4थी आयत मुकद्दसा को भी हम पढ़ लें मुकद्दस कलाम में से। आओ गौर करें। लेकिन मैं क्या मेरी फरियाद इंसान से है? हाँ, अय्यूब भी सब्र कर करके, इंतजार कर करके, अब उसके हालात भी डिस्टर्ब जब हुए तो वो क्या कहता है? लेकिन क्या, मेरी दरखास्त, मेरी दुआ इंसान से है। कि जैसे मैंने पिछले दिनों भी बताया था, खालिक मखलूक को इनकार नहीं कर सकता, मखलूक को इनकार कर सकती है। खालिक मखलूक को इनकार या खाली हाथ नहीं छोड़ सकता। हालेलुया। क्या कह रहे हैं अय्यूब यहां पर? सुने गौर से जी। फिर मैं
बेसब्री क्यों ना करूं? हाँ, कहता है मेरी दरखास्त बंदियां दे अगे है ही नहीं, ते बेसब्री दे इसलिए मैनू होर भी मंगया ते मैं ओहदे कोले, ते फिर मैनू क्यों बेसब्री ना होवे, फिर मैं क्यों सब्र करता रहा, इंतजार करता रहा। हम उसे अयूब साबर भी कहते हैं, है ना, कहते हैं ना। अब इस आयत पर जरा गौर करें। अब यहां पर उसका भी सब्र और उसका पैमाना इस आयत में हमें लबरेज नजर आ रहा है। वो कहता है कि मैं कौन सा किसी बशर या इंसान से मांग रहा हूं कि बेसब्री ना करो। आगे, मुझ पर गौर करो। हाँ, मुझ पर गौर करो, मुझ पर गौर करो, अपने दोस्तों से बात करते और मुतअज्जब हो, और मुतअज्जब हो, और अपना हाथ अपने मुंह पर रखो, अपना हाथ अपने मुंह पर रखो। जब मैं याद करता हूँ, जब मैं याद करता हूँ तो घबरा जाता हूँ, तो घबरा जाता हूँ, और मेरा जिस्म थरथरा उठता है। शरीर क्यों जीते रहते? क्यों? वो हैरान हुआ। बहुत शुक्रिया जी। अयूब हैरान हुआ कि शरीरों को कुछ भी नहीं होता, वो खाते पीते हैं, वो दुनिया को लूटते हैं, जुल्म और जबर और ज्यादती करते हैं, शरीरों का कुछ भी नहीं बिगड़ता, और मैं रासबाज होने के सबब से भी दुख उठा रहा हूं। मैं बेसब्रा क्यों ना हो जाऊं? मैं कौन सा इंसान से मांग रहा हूं? मैं कौन सा इंसानों की गैर मबूदों की पूजा पाठ करता हूं? मैं तो जिंदा खुदा का मानने वाला हूं। ये अयूब की हालात हैं। और जैसे मैंने कहा, दुनिया का मुश्किल तरीन काम कौन सा है? इंतजार, वेट, खुदा की खामोशी। नोट कर लें, ये जो दुआ करने और दुआ के जवाब के दरमियान में जो टाइम होता है, इसे आप कह लें खामोशी का टाइम, खामोशी का वक्त। कौन सा? इस पर मैंने एक नोट दिया है, इंतजार के वक्त में गलतियां मत करें। असी बेसब्रे हो जाने ना कि चल ऐ नहीं ते ऐ ही सही, ऐ नहीं ते ऐ ही सही करते हैं ना वैसे, कि चल जो लभ्या ले लो, नाल दे भी कहेंगे जो लभ्या ले ला यार। तो ये आपकी गलती होती है। जो लभ्या ले लो, जो आपने खुदा के ज़रूर रखा है उसके लिए इंतजार करें, गलती मत करें। खुदा आपको पूरा पूरा अजर देगा। खुदा दुआ का जवाब पूरा पूरा देगा। दुआ का जवाब 100% आएगा। जल्दबाज मत हो, बेसब्री मत करें। जो अयूब की किताब में से हवाला आपके लिए पढ़ा गया है, ठीक है, वो अजियत में था, दुख में था, लेकिन मैं आपको यह पैगाम देना चाहता हूं, खामोशी का वक्त बड़े तहम्मुल के साथ गुजारे। ये वो टाइम होता है जहां पर हम गलतियां करते और फिर हमारी दुआओं का जवाब रुक जाता है, नहीं आता। इसलिए इंतजार के वक्त में गलती या गलतियां मत करें, वरना इंतजार लंबा हो जाएगा। हालेलुया। बनी इस्राइल, आपको पता है कितना सफर था उनका प्रॉमिस लैंड के लिए? हाँ जी, 40 दिन, 40 डेज। और कितने साल गुजारे उन्होंने? 40 इयर्स विल्डरनेस में, बियाबान में, जहां उन्हें सांप और बिच्छू और बड़े बड़े खौफनाक खूनखार, उन्होंने उसमें से गुजरना था, रुकना नहीं था। हमने आजमाइशों में से गुजरना है, गिरना नहीं है। गिरते हम उस वक्त हैं जब हम बेसब्रे हो जाते हैं, जब हम वक्त से पहले रिजल्ट मांगते हैं, जब हम कहते हैं रातों रात कोई ऐसी गल बढ़े तो मैं किते तक किते पहुंच जावा। मैंने परसों हैदराबाद में अपनी पास्टर्स के साथ मीटिंग में ये बात सिखाई थी, टीच किया पासबानों को मैंने, कि बेशुमार पास्टर्स, लीडर्स अपनी सरफराजी के लिए बहुत ज्यादा बेसब्रे हो जाते हैं और वो रॉन्ग डायरेक्शन की तरफ, शॉर्टकट की तरफ। और आपको पता है खुदा की बादशाही में कोई शॉर्टकट नहीं है। सुन ले गौर से मेरी बात। खुदा की बादशाही को जाने वाला रास्ता, उसका कोई बाईपास नहीं है। वो दुखों की राह है, वो अजियतों की और कांटों की सेज है, जिस पर से गुजर कर आप खुदा की बादशाही में जाएंगे।
ग्लोरी के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। इसलिए इंतजार के वक्त में गलतियां मत करें। और फिर सलातीन की पहली किताब 17 और 18 बाब पढ़ें, बस नोट कर लें। एलिया ने कहा, जब तक मैं न कहूं मीना बरसे। हालेलुया। मर्द खुदा था, ऐ होंदे ने मर्द खुदा। मैंने पहले भी बताया था कि सबको मर्द खुदा ना कहे करें। इंग्लिश में लफ्ज मैन ऑफ गॉड लिखते हैं आजकल हमारे बहुत सारे दोस्त मीडिया पर, जो आजकल भरमार हुई है। मैं हाथ जोड़कर उनको कहता हूं कि प्लीज हर शख्स के लिए आप मैन ऑफ गॉड ना लिखें। जब हम एलिया की मिनिस्ट्री और हिस्ट्री पर गौर करते हैं, वो वाकई मैन ऑफ गॉड था। क्योंकि जो मैन ऑफ गॉड होता है वो मैन ऑफ फेथ भी होता है, और जो मैन ऑफ फेथ होता है वो मैन ऑफ वर्ड भी होता है। जो मैन ऑफ वर्ड होता है वो मैन ऑफ प्रे भी होता है, वो मर्द दुआ भी होता है, वो मर्द कलाम भी होता है, वो मर्द वफा भी होता है, इसलिए वो मर्द खुदा भी होता है। एलिया ने दुआ की थी, आसमान बंद हुआ था, और एलिया ने दुआ की थी और आसमान बंद भी किन्ने कीता? एलिया ने। खोलिया भी किन्ने? इधरों चाबी ओदे कोल ही सी। तो इसलिए ये ऐसे नहीं होता, इसके लिए हमें खुदा के हुजूर झुकने की जरूरत है। जैसे पहले मैंने बताया कि खुदा की हजूरी में दौड़े, खुदा की हजूरी से ना दौड़ जाएं। आओ जरा देखें, यसाया 40वां बाब है, आइज़ाया 40 वर्स 30। यसाया 40:30 पढ़िए जी। नौजवान भी थक जाएंगे, नौजवान भी थक जाएंगे। अक्सर जवानों ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਕਹਿੰਦੇ यार ਤੈਨੂੰ ਕੀ हो गया, जवान बंदा है तू ਐਵੇਂ ਡਿੱਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵਾ। क्योंकि जवानी में जोर ज्यादा होता है ना, बुढ़ापे में कम हो जाता है। लेकिन क्या लिखा है? नौजवान भी थक जाएंगे और मादा होंगे, और मादा होंगे और सुरमा बिल्कुल गिर पड़ेंगे। वॉरियर, जंगजू। आपको पता है ट्रेनिंग होती है जंगजू को, उसने प्रैक्टिस की होती है, वो उसने दौड़ लगाई होती है, उसने रुकावटी दौड़े जिनके सामने रुकावटें होती हैं, ऑब्स्टिकल्स होती हैं, फलांगते हैं वो। आपको पता है वो फलांगती हुई दौड़े, उसमें रुकावटें खड़ी की जाती हैं कि आपने बगैर रुकावट को टच किए अपनी दौड़ को सूरमा, वॉरियर्स, जंगजू, सिपाही, लड़ाके, कमांडोज, उनके बारे में क्या लिखा है? पहले लिखा है नौजवान भी थक जाएंगे और मादा होंगे और सूरमा बिल्कुल गिर पड़ेंगे। लेकिन खुदावंद का इंतजार करने वाले असर-ए-नौ जोर हासिल करेंगे। ये वो लोग हैं जी, वो अकाबों की मानिन बालों पर से उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे ना थकेंगे, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। हालेलुया। जो लोग खुदा की हजूरी में दौड़ते हैं, ना वो थकते हैं ना वो मांदा होते हैं, बल्कि वो गलबे वाली जिंदगी बसर करते हैं। और जो खुदा की हजूरी से दौड़ जाते हैं वो फिर थकना ही थकना है ना। 4 दिनां दी चांदनी ते फिर घुप अंधेरा है। 4 दिनां दी चांदनी तो फिर अंधेरी रात। 4 दिन बड़े जनाब ठाड़ पाड़ ने, मिनिस्ट्री है जी, लहरां पैरां ने। अजकल तो ये कि जो कोई पैसे आ जाते तो बैग चुकने वाले भी वो बड़े इकट्ठे हो जाते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ, लोग प्यार करते हैं मुझे। अक्सर लोग कहते हैं कि भाई साहब तुसी अब मैनू फड़ा दो बैग। मैं उनको ये कहता हूँ कि जब मैं बाइबल का भी बोझ नहीं चुक सकता तो फिर मैं बाकी किहड़े बोझ चुकने हैं। अगर बाइबल उठाकर मुझे फख्र महसूस नहीं होता तो फिर मुझ पर अफसोस। इसलिए बाइबल जब भी लेकर आए बड़े फख्र के साथ लेकर आया करें। बाइबल तो हमारी पहचान है। और जोरदार तालियां बजाएं पाक कलाम के लिए।
इस बाइबल ने ते वो गीत भी हम गाते हैं ना, तेरे कलाम ने रातों को, इन्हें तो साड़ियां रातां नूं दिन च तब्दील करता है। ते इनू चुकन लगे लोग नाल सैकटरी रखी फिरदे ने। इसको तो शान से उठाया करे, फख्र से उठाया करे कि मेरी बाइबल मेरी शान है। और एक खादिम कहते हैं कि बाइबल मुकद्दस शहीदों के लहू के दरिया में बहती हुई हम तक पहुंची है। आओ उन शहदा के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। इस बाइबल के लिए बड़े लोगों ने जाने दी हैं, फिर हमारे पास कलाम पहुंचा। तीसरा पॉइंट और आखिरी पॉइंट मुख्तसर है, जल्द मैं खत्म करूंगा। ये लास्ट पॉइंट क्या था? खुदा का इनकार, when God says no। और आपको पता है कि जो लोग पहले 2 फेज में फेल हो जाते हैं वो तीसरे फेज में आते हैं। अगर किसी को खुदा ने इनकार किया है तो मीन्स दैट कि वो पहले जो फेज थे, पहला फेज क्या था? जब गॉड सेज यस, जब खुदा कहता है हाँ बिल्कुल बेटा तेरी दुआ का जवाब यस में है, होगा। और दूसरा इंतजार, वेट, दुआ का जवाब आएगा लेकिन तुझे सब्र करना पड़ेगा, बेसब्री नहीं करनी। और तीसरा नो, खुदा का एक बार भी इनकार 1000 बार भी इनकार। खुदा की एक बार नो, ऑलवेज नो। आप उसे यस में तब्दील नहीं कर सकते। हालेलुया। आप कभी भी उसे यस में तब्दील नहीं कर सकते, क्योंकि खुदा अपने कलाम का इनकार कभी नहीं कर सकता। उसने अपने कलाम को अपने सब नामों से ज्यादा अजमत दी है। आओ झुके और उसे कहें खुदावन मैं हाजिर हूं। आखिरी बात सुन लें, खुदा जिद्दी लोगों को नापसंद करता है। घोड़े, खच्चर, ये सब जिद्दी होते हैं। ते दाऊद कहता है ना हो घोड़ियां, फिर से ना हो, अक्का खोलो जरा मेरे देखो, ना हो घोड़ियां खच्चरा वांगू, क्योंकि ये जिद्दी होते हैं। और आपने देखा होगा जो घोड़ा जो खच्चर जिद्दी हो जाए, विगड़ जाए, तो ना वो पैली वेखदा है, ना वो जनाब खाल वेखदा है, ना वो गंदा नाला वेखदा है, सवारियां समेत ही विच बड़िया हुंदा है। ये जिद की वजह तो है। तो कई लोग इसलिए गंदगी में डूब के बर्बाद हो गए क्योंकि वो जिद्दी थे, और खुदा जिद्दी लोगों को नापसंद करता है। आए चुके और दुआ करें।